आज हम पढ़ेंगे दूसरा सैमुएल 18:33। Shall we read 2 Samuel 18:33? ये अब्सलोम की कहानी का आखिरी हिस्सा है और हम अब अगर प्रभु ने दया की, हमें मालूम नहीं कब किस समय हम करेंगे, तो अब्सलोम 1, अब्सलोम 2, अब्सलोम 3 ऐसे करके देख पाएंगे शायद। We do not know whether it is in the Lord's will to do so, or will the Lord give us the grace to do so, but we'll look at Absalom 1, Absalom 2, Absalom 3. In this way, we'll try to cover the story of Absalom. तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर की अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा और चलते चलते यूं कहता गया, हाय मेरे बेटे अब्सलोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अब्सलोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदले मरता। हाय अब्सलोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। The king was shaken. He went up to the room over the gateway and wept. As he went, he said, "Oh, my son Absalom, my son Absalom, if only I had died instead of you. Oh, Absalom, my son, my son." आइए प्रार्थना करें। Come, let us pray. प्रभु, हम आपके कैलवरी के बहे हुए लहू के सहारे आए हैं। The Lord, we come to you through the shed blood of the cross of Calvary, तैयारी अपने ज्ञान, अपने अनुभव के सहारे नहीं है प्रभु, not by our experience or knowledge or preparation, बल्कि हम उस सामर्थ्य के द्वारा है जो आपसे मिलती है प्रभु। but we have come through the power that comes from you. हम क्रूस की सामर्थ्य को ललकार जय जयकार करते हैं प्रभु। We worship, we praise you, Lord, for the power of the cross. आपके लहू में अपने लोगों को ढांप देते हैं जो प्रभु बड़े भूख और प्यास से तेरे घर में आए प्रभु। We cover your saints in the blood of Christ who have come to you with hunger and thirst at your house. प्रभु, हम किसी स्थान से नहीं जुड़े हैं, आपसे जुड़े हैं प्रभु। Lord, do not join to any particular place, we join to you. इसलिए हमारे मन भी आपकी तरफ जोड़ दें प्रभु। That is why that our hearts also be joined to you. मैं 1:9:48 निर्गमन 4:12 पूरा करें। Fulfill Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, Isaiah 48:6. बोलते याद दे, पुकारने का शब्द दे, Give the boldness to speak and a voice to cry out, और प्रभु आपकी सामर्थ प्रकट हो। and your power may be revealed. प्रभु, हम दोनों भाइयों को एक मन करें, पवित्र आत्मा अपना कंट्रोल लें, क्रूस के पीछे छिपा। Make us brothers of one heart, Holy Spirit take full control, hide us behind your cross. बोलते याद दे, पुकारने का शब्द दे। Give boldness to speak and a voice to cry out. हाँ, लोगों के दिमागों को नहीं, दिलों को छुए प्रभु। Lord, do not touch the hearts, the brains of people, but their hearts and minds. शत्रु को ये सुनाम मत, Bind Satan in Jesus' name. महिमा आपको मिले, You may receive all the glory. यीशु के नाम से मांग। In Jesus' name we pray. Amen. हमारे पास मात्र जीने के लिए एक जीवन है। We only have one life to live. कुछ गवा के जिए या कुछ गवा के जिए। We can either live it by wasting it away or by investing it. परमेश्वर का वचन कोई मजाक नहीं है, तो नहीं The word of God is not a joke. जो हम बोएंगे वो निश्चित रूप से खाएंगे। That which we sow, we will also reap. हाँ, मैं विश्वासियों को कह रहा हूँ ये बात। And I'm saying this to believers. विश्वासी सोचते हैं भाई साहब मैंने पाप से पश्चाताप कर लिया तो पाप, मगर ताड़ना है उससे नहीं छोड़ता किसी। Believers think that I have repented of my sin, that is enough. No, the Lord will also chasten you accordingly. तो ताड़ना से छूट गया वो विश्वासी नहीं। He who is spared from chastening is not really a believer. हाँ, जो भी ताड़ना से बच के गया है वो विश्वासी नहीं है, वो फिर दंड पाएगा, एक बार पाएगा। He who has not been chastened is not a believer. He will receive that one final judgment one day. हाँ, ताड़ना में देर नहीं होती भाई। There is no delay in chastening. आप फर्क कीजिए तीन तरह से, एक तो दंड की है जो अलग आएगी, एक one is the judgment, that is the final judgment. One is chastening that comes on believers. हाँ, और कई बार प्रभु हमें पीड़ा में लाता है ताकि हमें कोई बड़ी आशीष दे। And sometimes the Lord allows us to come in trials and troubles to bless us abundantly. देखिए, आप पाप मिटा सकते हैं, ताड़ना नहीं मिटा सकते। You can remove sin, you cannot remove chastening. आप शादी कर लीजिए गलत और फिर सारे जीवन भोगी उसे, तो कभी If you marry wrongly, you will have to face the consequences all your life.
लिया, पेशाब कर लिया, मगर भाई साहब जो बोया है उसे अब काट। Now I have repented, but what you have sown, you will also reap. हाँ, ये प्रभु की बड़ी दया है, अगर आपने उसको ताड़ना को बड़े अभ्यास से लिया, प्रभु तेरा धन्यवाद, अब गलती होगी कुछ नहीं जो तू। If you have taken the Lord's chastening with a lot of courage and with sense, then it will bless you. धन्यवाद दिया प्रभु को। You did not murmur, but you thanked the Lord for it. पति को, आपकी पत्नी का उद्धार हो जाए और प्रभु दया करते हैं आप पर। That your wife, your husband be born again, and the Lord shows mercy to you. मगर वो ताड़ना तो फिर आपकी है ही सो है, फिर वो But आप the chastening will come, it is in its place. बार ऐसा होता है जो हम खुद बोलते हैं, हमारे बच्चे भी काटते And many times that which we sow, our children also reap. हैं। इसलिए ताड़ना बनी क्यों रहती है कई दफा? Why does chastening remain for quite some time? फिर यार पहले ही बहुत पिट लिया, अब दोबारा I've already been beaten up pretty badly. Why more? हाँ, फिर कई बार और मुसीबत में फंस। And I may not get caught into more trouble. प्रभु न्यायी परमेश्वर है, अगर वो ये नहीं करेगा तो वो न्यायी परमेश्वर नहीं है। If the Lord is a just God, if he will not do so, then he is not just. ताड़ना में जीवन बिता देते। Some people spend all their lives in chastening. वो मसीह जीवन का आनंद, खुशी आप नहीं ले पाते। And they are not able to enjoy the believing life. बेवकूफी के कारण ऐसा करते। That can happen because of foolishness. ये नहीं कह रहा कि बेवकूफी नहीं होती, पाप नहीं होते, ये बात नहीं है बिल्कुल। And now it is not that we don't do foolishness and don't commit sin. मैंने नहीं किए, Pardon, brother? मैंने नहीं किए, ऐसा नहीं है। It is not that I have not done it. प्रभु माफ कर दिए, माफी मांग ली, ये बात ठीक है, इस बात को विचार करें। The Lord has forgiven, it is true. We look upon this thought. तो ये निश्चित रूप से अगर आप विश्वासी हैं तो आप ताड़ना में से जाएंगे, न्याय में से। And it is really true that if you are a believer, you will go through chastening. ये निश्चित रूप से। And this is really true. दिमाग में सवाल खड़ा होता है, प्रभु यार पाप मिटा देता, ताड़ना क्यों नहीं मिटाता? Now the question arises, the Lord wipes away our sin. Why not does he take away the chastening also? ताड़ना हमेशा याद दिलाती है और अगले गलत कदम को उठाने से रोकती है। Because the chastening improves us and protects us from taking the next wrong step. डेविड से कहा, देख तेरे पाप क्षमा। The Lord said to David, see, your sins are forgiven. नातान नबी क्या कहता है? What does Nathan the prophet say? तलवार तेरे घर से नहीं जानी। But the sword will not depart from your house. मरते दम तक तलवार उसके घर में बनी रही। And till his dying day, the sword remained in his house. वो यहूदा के वंश के लिए 300 साल के राजाओं के लिए तलवार दे के चला गया, लड़ते रहो आपस में। And for the remaining 300 years, he left behind the sword for the kings of Judah to keep fighting. अरे भाई जी, उसने जो कमाया था, Whatever he had earned, प्रभु यीशु मसीह को अपनी आखिरी रात में, आखिरी समय में भी तलवार उसके पास नहीं गई। even till the Lord's dying breath, till the last hour, the sword did not depart. गethsemane में नहीं गई तलवार। It did not go away, even in Gethsemane. हाँ, अब्राहम ने 2 बार पाप किया। मेरा टाइम नहीं है इस समय, नहीं तो बहुत आगे निकल जाएंगे। बड़ी सुंदर बात है कि उसने तो एक बार मिश में, एक बार गरार में वही पाप दोहराया और पति पत्नी ने दोनों मिलकर वो पाप किया। And Abraham repeated the same sins twice. Both husband and wife were involved in it, both in Egypt and then in the place of Abimelech. मिस्र गया। Pardon, brother? मिस्र गया, परमेश्वर की He मर्जी के विरुद्ध went to Egypt. हाजरा ले आया। He brought back Hagar, हाँ, और हाजरा इस्माइल ले आई। and Hagar brought Ishmael. तो इस्राएल पे जो फिलिस्तीन है ना, हर दिन जो खड़े है उसके खिलाफ, ये वो इस्माइल की संतान जो अब्राहम ने आज उसकी संतान। Israel continues to pay the price of that mistake. हाँ, वो काट रही है आज भी काट। They are still paying the price. येरू का मतलब है नगर। येरू का मतलब क्या? सब तो इलाके करो यार। येरू का मतलब क्या है? नगर। शालेम का मतलब है शांति। सलाम बोलते हैं, शालेम बोलते हैं शांतिया। तो शांति के नगर में आज तक
अशांति है, क्योंकि कहाँ दाऊद ने बोया था और आज तक अब्राहम ने जो बोया था वो So शांति। Jerusalem means the city of peace, and how in that city there is no peace because of what Abraham had sown or what David had sown. ने जो बोया है, इसलिए उनके घर में आज तक, और वो बच्चों को देके जाएंगे। And for some, what they have sown, they will leave it behind for their children. हाँ, बाप मिटा सकता, बाप मिटा देता। Sin causes destruction. हाँ, देखिए, The Lord wipes away sin, not chastening. Yeah. पाप पीछे छोड़ देता, ताड़ना पीछे नहीं छोड़ती। He leaves behind the sin, not the chastening. तो तड़पाती है, प्रभु कहीं अगली दफा मैं फिर अपने प्यार में रख दूं, बड़ा सजग रखती है। And chastening keeps me cautious. Next, I'll not put my foot back again in the same situation. सैमुएल 3:3 पढ़ी, देखिए गलती कहाँ से शुरू हुई। और आपको मेरे ख्याल में कहानी नहीं मालूम होगी, इसलिए कुछ लोगों के लिए, जिन्होंने नहीं पढ़ी अब्सलोम की कहानी, उनके लिए कुछ थोड़ा अटपटा लगेगा, मगर प्रभु उन पर दर्शन खोले, मैं नहीं जानता। And 2 Samuel 3:3, some of you may not know the story. May the Lord reveal this vision to you. 2 Samuel 3:3. आपके पास शांति का परमेश्वर है, मगर शांति नहीं। क्या अजीब You बात है। have the God of peace, but no peace in your life. What an amazing thing. यू कह रहे मेरे पास शांति का परमेश्वर है, तो Is कहीं he गड़बड़ the है। God of peace? Something is wrong somewhere. और फिर जीने का अर्थ क्या रहा भाई, ये मुझे बताओ। Then what is the meaning of life or living? बहुत पैसे हैं, बैंक बैलेंस बहुत है, और शांति का परमेश्वर भी और शांति नहीं है, तो यार You have a lot of money, a lot of resources, bank balance, but you have the God of peace and no peace. तो फिर कहीं हमने बोया है कुछ। You have sown something somewhere. हाँ, प्रभु ने आपका नरक का दंड मिटा दिया भाई साहब। The Lord has wiped away your punishment of hell. कहीं गड़बड़ है, वो ठीक होनी चाहिए, बिल्कुल जरूर। But there is something wrong somewhere that has to be set right. डेविड कहाँ गलत कर गया? Where did David make a mistake? पता नहीं लगता गलती कहाँ से शुरू हुई। We don't realize where the mistake begins. देखिए, कुछ बिल्कुल राजनीतिक तौर पर बड़ा सही दिखता था। This seemed to be a right political move. हाँ, समझ के अनुसार बड़ा सही था यार, दिमाग से। Very correct according to human understanding. आंखों के यार बहुत सही था, And definitely good for the eyes. मगर बाइबल के अनुसार वो सब सही नहीं था। But according to the Bible, it was all wrong. डेविड के बिल्कुल, आप गशूर जो है वो दक्षिण, कहना चाहिए उसे, दक्षिण पूर्व के बीच में गलील के एक, उस समय एक देश था बिल्कुल जुड़ा हुआ से। There was a land called Geshur on the southeast of Israel that was completely joined to Israel. तो एक पॉलिटिकल स्टेप होता है कि आप अपने जो करीबी है उससे रिश्तेदारी कर लो उस समय के। There's a political step that you have a close relationship with the opposing king. हाँ, मतलब शादीशुदा रिश्ता बना लो आप। Make a marriage relationship. अब वो जो राजा है, वो बॉर्डर से मिलते हुए जो शहर है, वो बहू को दहेज में दे देता, मतलब बेटी। Now the king gives the neighboring cities of the bordering cities to his daughter as dowry. तो अब वहां से बिल्कुल सिक्योर हो जाता था, एक दोनों देशों के तो रिश्ता होता था, वो जगह दे दी जाती थी, मेल मिलाप रहता था। अब वो अपनी फोर्स को दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते। As a consequence, there was amicable relationship between the two kingdoms, and the king could apply his forces elsewhere. राजनीतिक तौर से, समझ के तौर से बड़ा था, तो उसने गुशेर के राजा तलमेक से की लड़की से शादी कर ली। So it was a very sound political move that he got married to the daughter of the king of Geshur. हाँ, पढ़िएगा 2 सैमुएल 3 और 9। If you read 2 Samuel 3 and verse 9. यदि मैं दाऊद के साथ ईश्वर की शपथ के अनुसार बर्ताव न करूं, तो परमेश्वर अब्नेर से वैसा ही। तीन पढ़ दे पहले भाई। 3। और उसका दूसरा किलाब था, जिसकी मां कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगेल थी। तीसरा अबशालोम, जो गशूर के राजा तलमे की बेटी माका से उत्पन्न हुआ था।
हाँ, तो बाइबल के अनुसार अन्य जातियों में शादी मत करो। According to the Bible, do not marry amongst the Gentiles. प्रोफाइल ही नहीं मिलता, शादी करें ना करें। The profile doesn't match whether to marry or not to marry. जॉन भाई पीएचडी को मिलती नहीं, But John doesn't get a PhD girl. प्रोफाइल ही सेट बैठता है। The profile is not getting set. हाँ, तो बहुत आदमी दिमाग भी तो लगाता है ना। The man applies his human mind also. तो उसने माका इतनी खूबसूरत लड़की थी, इतनी खूबसूरत लड़की थी, मुसलमानी थी, बहुत ही अट्रैक्टिव लड़की। And this son of this daughter, the daughter of Maka was a very beautiful girl. The daughter of Talmai was a very beautiful girl. शादी कर ली उसने। He married her. यार चारों तरफ से फिट है मामला। And the whole situation is fit from all sides. पॉलिटिकली फिट है, समझ से फिट है, आंखों के हिसाब से बहुत फिट है। Yeah. The girl's name was Maka. So it was a very politically sound move from all sides. शादी कर लेंगे बाद में, बाइबल प्रभु से बाइबल की कोई इच्छा आए खोज के। And let me get married, then I'll come to know the will of God from the word of God. डेविड ने शादी कर ली। David got married. भाई जेनेटिक गिफ्ट थी, तो दो बहुत ही खूबसूरत बच्चे पैदा हुए उसके पास, अब्सलोम और एक लड़की तामार। And because it was the genetic thing was that the very beautiful children Tamar and Absalom were born of this relationship. भाई खूबसूरत माँ है, बाप वैसे बच्चे निकल के आए। The father is handsome, the mother is beautiful, the children are also good looking. तो अब्सलोम जैसा खूबसूरत आदमी नहीं था, उसका बहन थी तामार, जो रियल बहन थी। And there was no more handsome man than Absalom, and a beautiful sister he had, Tamar. नहीं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं कहानी के ऊपर ठीक आ रही है समझ? तो ऐसा मैं जल्दी में हूँ इसलिए ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, तो क्या हुआ? Then what happened? हाँ, अब यहाँ पाप हो गया, गलती कर दी। Now here he's made a mistake. उसे नहीं पता लगा मैंने गलती की। He doesn't realize I have done it. शादी के कुछ महीने या कुछ साल तक नहीं पता लगता, बाद में फिर And for several years into the marriage, we don't realize. जब दोनों का असली रूप आता है, मेकअप निकल जाता है शादी के बाद, अब तब सामने When आता all है। the makeup is gone and the reality comes out, हाँ, तब सुबह उठ के पता लगता है कि असली शक्ल क्या है। then wake up in the morning and realize what the true face is. तो दाऊद को वहां धकेल दिया, उसे पता ही नहीं लगा मैं पाप। And David got into this, didn't realize that committing a terrible thing. देश के लिए, अपने उसके लिए बहुत अच्छा किया। I have done well for the country and for the nation. तू रक्षा कर रहा था देश की, Were you looking after the country? मैं घर ना बनाऊं तो बनाने वाले का पैसा। The Lord said, unless I build the house, those who labor in vain who build it. ये आंखों से देख के किया, He did it by looking at his eyes. उससे दिल नहीं भरा दाऊद का। That did not satisfy David's heart. फिर यूरिया की बीवी देख ली, Then he saw the wife of Uriah the Hittite. आपने तो योआब ने साथ दिया और उससे भैया, वो कभी सोचता नहीं था कि मैं हत्या करूंगा, मगर उरिया जो था वो जनरल था। And even Joab fully supported him. David never thought he'll commit murder. Uriah the Hittite was a very wonderful general. भाई की उससे काम योआब से, मैं तुझे ऑर्डर देता हूँ, उसे मरवा दे। And he gave the order to Joab to get him killed. देखिए, आप इस शब्द को याद रखना जरा। Now remember this word. राजा कह रहे हैं, इसको मरवा दे, मैं ऑर्डर देता हूँ। Get him killed, it's my order. और उसने मदद की। And he helped him. Joab helped him. अब योआब तो चाहता था कि उसकी कोई कमजोर नस पकड़े, और भाई जी जब चाहे जब Joab wanted to catch hold of some weak strain in David and get him into and put him under his pressure.
जितना पाप छुपा रहा था, पाप उतना ही बाहर निकल रहा था, बढ़ रहा And the more David was trying to conceal his sin, the more it was coming out. था। जब एक दिन उसको वचन मिला, एक संदेश मिला, एक कहानी मिली प्रभु की तरफ से नातान नबी के द्वारा। Then he got a message, a story, a message from God, from Nathan the prophet, का पाप उस पर प्रकट हुआ। and his sin was revealed to him. दाऊद में एक बात थी, बहुत खास बात। David had one special thing. देखिए, आदम ने, जो आदम के हैं, आदम का स्वभाव उनमें है, ज्यादातर पाप मानने को तैयार नहीं होते, गलती मानने को तैयार नहीं होते, और दूसरा छुपाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये आदमी का स्वभाव है। They who are Adams are not willing to confess sin like Adam and try to conceal it like Adam. मगर उसमें दाऊद में परमेश्वर का स्वभाव था, उसने अपने पाप को जैसे ही प्रकट किया, पाप मान लिया। दूसरा But David had the nature of God in him. As soon as his sin was revealed, he accepted it. 2 Samuel chapter 12, वर्स 13। verse 13. तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। पाप तो खत्म हो गया। Now sin has been taken away, धारणा तो थी, but the chastening is there. 13 पद में क्या कहता है? What does he say in verse 13? नहीं, ऊपर होगा भाई, वो तेरे घर से तलवार नहीं जाएगी। 12-13, हाँ 12-10। Yeah, verse 10, sorry. इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, God was not तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। अब तलवार तेरे घर से, sword will not depart from your house. प्रियो, एक बात ध्यान रखिए, पाप कोई माहौल नहीं करना। The one sin is not a joke. हाँ, देखिए, मैं कहानी को थोड़ा आगे ले जाने के लिए कहता हूँ। डेविड का एक बड़ा बेटा था, उसका नाम था अम्मोन। उसका नाम क्या था? अम्मोन। वो No, yes. David had an elder son whose name was Amnon. He was the crown prince. हाँ, क्राउन प्रिंस, मैं किंग कह रहा हूँ, सॉरी। हाँ, तो क्राउन प्रिंस था, यानी अब उसके सर पर ताज है। That means he was to receive the kingship after David. हाँ, और ये सौतेला भाई था तमार का। And he was Tamar's stepbrother. देखिए, व्यभिचार के बीज अपने परिवार में दाऊद बो चुका था। David had already sown the seeds of adultery in his family. अब क्या हुआ? Then what happened? तामार ने, जो क्राउन प्रिंस था, जिस पर ताज आने वाला था, उसने अपनी सौतेली बहन तामार से, जो बहुत ही खूबसूरत थी, अश्बलोम की बहन थी, बहन थी, उसके साथ व्यभिचार किया, जबरदस्त। And this Amnon, the crown prince, raped his sister, step-sister Tamar, the real sister of Absalom. मैं पूरा नहीं पढ़ रहा। दाऊद को खबर मिली, यार ऐसा मेरे घर में हो गया। And David came to know this has happened in my home. And he was really completely irritated, गुस्सा हो गया, very angry, न्याय नहीं किया उसने। but did not judge. Why not? Pardon, brother? बेटा था उसका, इसलिए। Because he was his son. भाई आपका आवाज थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है भाई। मेरा? हाँ जी भाई जी। कहाँ था मैं, बड़ी David did not judge because Amnon was his son. और उसको न्याय करना चाहिए था कि ये नहीं रहेगा, ये क्राउन प्रिंस नहीं। He had to judge Amnon. He will not be the crown prince anymore. उसने नहीं किया, But he didn't. क्योंकि उसका परिवार था, It was his family. दूसरे का बेटा तो पाप करता, मेरा बेटे से पाप हो जाता है। Another person's son sins, my son ends up sinning. बच्चे ये
He's only a son. दूसरी बात ये भी था उसका मुंह The other thing, pardon, brother? दाऊद का खुद का मुंह नहीं था। David himself could not speak up. बच्चे जवान थे, कहते कि तू हमें क्या शिक्षा दे रहा, अपना तो देख ले। The sons were young, they would have said, what are you teaching us? Look at yourself. तो प्रियो, प्रभु पाप माफ कर देता है, मगर फिर वो पाप आपका परिवार उसे भोगना पड़ता है। उस पाप को भले ही वो क्षमा हो गया, वो बार Dear बार आपका ones, the Lord will forgive, but you have to face the consequences. मैं जल्दी से कहानी के आगे चल रहा हूँ क्योंकि हम आगे आने वाले दिन देखेंगे। तामार तो सॉरी अब्सलोम 2 साल तक इंतजार करता रहा कि तामार के लिए कुछ किया। Absalom waited 2 years. Some justice would be done for Tamar. हाँ, और दाऊद ने कुछ नहीं किया। But David didn't take any action. मामला ठंडा हो गया, दफा दफा हो गया। And David thought quietly, this has been pushed under the carpet. कभी मरता नहीं भाई जी, But sin never dies. पलेगा, बढ़ेगा और जड़ें पकड़ लेगा। It will grow and take deep root. वो नहीं जाता बजाय, It doesn't go away like that. क्रूस की सामर्थ उस पर अप्लाई ना की जाए, वो इसकी जड़ों को Unless the power of the cross is applied on it, only that can kill it. उसके बेटे भी कहते तू कौन सा दूध का दूल्हा है जो हमें सिखा रहा है। And his sons would have also said, who are you that you should teach us this? और वो 2 साल तक जब नहीं हुआ, And when for 2 years there was no justice for Tamar, अब्सलोम इंतजार करता है कि दाऊद एक भी दाऊद इसलिए हो गया, मामला ऊपर से ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। and David thought maybe the things being rectified from outside. आपने कहीं पाप किया है और सोचा मामला दफा दफा हो गया, 2 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। नहीं, अगर इलीगल पैसा है, किसी से इलीगल बात हुई है, किसके ऐसी बात की है, वो पाप पनपेगा, जड़ पकड़ लेगा और फिर बड़ी भयानक तरीके से। If you have done something wrong, taken illegal money, done something amiss before, then that sin will take root and cause a lot of damage. हाँ, एक दिन एक भाई कहने लगा, पता नहीं ये मेरे लिए, मैंने इसका हिसाब इनकम टैक्स में दिया या नहीं दिया। One day, one brother started saying, I have taken this, whether I have given the income tax for it or not. हाँ, इनको इतनी बड़ी रकम इनकम टैक्स में देगी। And he said, should I give such a big amount in income tax? वचन मजाक नहीं है जो ठट्टों में उड़ाया जाए, जो तुम बोगे वो। The word of God is not a joke. That which you sow, you will also reap. हाँ, तो प्रियो, दाऊद ने सोचा मामला ठंडा हो गया। And David thought the matter is over. हाँ, देखिए, मैंने कहा ना, पुराना पाप भी हमारे जब तक पड़ा रहेगा वो जड़ें पकड़ लेगा, जड़ें पकड़ लेगा। As long as the old sin remains, it will take root. हाँ, देखिए अब क्या हुआ। And what happened? अब्सलोम का प्रबल था, पक्ष जो था बड़ा प्रबल था। देखो, दाऊद ने अब्सलोम को न्याय नहीं दिया, लोग तो सुन चुके थे पाप। And people would have heard that David had not done justice with Absalom. हाँ, अब अब्सलोम बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, उसकी 2 चीजें बड़ी खूबसूरत थी। Now, Absalom was a very intelligent man. 2 things about him were very beautiful. बाल और एक सर। One was his mind, his brain, and one was his hair. बहुत तेज था, Very smart. ठंडा करके पीता था। But he would take his revenge cold, जवान जल ना जाए कहीं। that it would not burn up. हाँ, बहुत कई होते ना, हम जब मेरा आदमी किसी ने कहा इनको, हाँ तू एकदम दिल ले, फिर बाद में क्या यार करके आएगा, क्या गया। And some people like me, we immediately react. हाँ, तो अब्सलोम बहुत ठंडा करके गई। But Absalom will take his revenge served cold. हाँ, वो तो मार सकता था कभी भी तामार को, उसे तामार करा। Abner. He could have killed Abner anytime he wanted. अब उसके दिमाग से काम सोचा, But he thought of a way. एक पत्थर से 2 शिकार होनी चाहिए। I will kill 2 birds with one stone. तो मोन मार दिया जाए। One is Amnon is killed. लोग कहेंगे पक्षे जब बाप ने ही मारा, व्यवस्था भी कहती, फिर खुद मार दिया।
And people will accept because sin was not judged. So he himself killed his daughter's rapist, his sister's rapist. अमोन जो है वो क्राउन प्रिंस है, आने वाला राजा है, वो भी खत्म, फिर मेरे ही नंबर। And if Amnon, the crown prince, is dead, then it is my number. हाँ, तो उसने एक बड़ी पार्टी रखी अपने घर पे, मैं समझ जल्दी हूँ। So he kept a big party, राजा के पास आप आओ, राजा आप भी आओ। asked the king to come. राजा ने कहा देख मैं आऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मेरे साथ पूरी मिनिस्ट्री आएगी, सेक्रेटरीज आएंगे और ये आएगा, बड़ी भीड़ हो जाएगी, नहीं तू। And the king said, look, if I come, it will be a lot of trouble for you. The whole entourage will come, all my officers, etc. will come. ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तू भाई। It will be too much. उसने कहा फिर तो ऐसा करो, आप अमोन को भेज दो। So he said, send Amnon. एकदम सवाल आया, अमोन को क्यों भेजूंगा? And immediately David thought, why Amnon? हाँ, फिर एकदम ध्यान आया कि Then he remembered, दूसरी पोजीशन पे वो है, because he is the crown prince right after me. तो उसे मारना होता 2 साल पहले मार दिया होता। Oh, if he wanted to kill Amnon, he could have killed 2 years back. हाँ, तो फिर उसने अलाउ कर दिया। So he allowed Amnon to go. अब देखिए पढ़िएगा दूसरा सैमुएल 13:28। Now 2 Samuel 13:28. 2 Samuel 13:28. तब अबसलोम ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सावधान रहो, और जब अम्नोन दाख मधु पीकर नशे में आ जाए और मैं तुमसे कहूं अम्नोन को मारो, तब निडर होकर उसको मार डालना। क्या इस आज्ञा का देने वाला मैं नहीं हूँ? हाँ, योआबा यूरिया को मार दे, क्या इसकी आज्ञा देने वाला मैं नहीं हूँ? Joab killed Uriah the Hittite. I am not the one commanding you. हाँ, या उसका बेटा क्या कह रहा है? Here, what does David's son say? अरे उसको मारने की आज्ञा मैं नहीं देने वाला नहीं हूँ। Am not I the one to cast you to kill Amnon? यो हर पाप का जो बोगे काटोगे। You will reap every sin you have sown. हाँ, आप उससे उसे नहीं मिटा सकते। You cannot wipe it away like that. मैंने कहा पाप की क्षमा सत्य है, पर उसकी ताड़ना भी सच्चाई है, सत्य है। It is true that sin's forgiveness is there. It's also true that sin's chastening is also there. और मैंने आपसे बताया कि उसे अपने बालों पर भी बड़ा घमंड था, तोल के दिखाता था कि देखो इतने बाल में। And he was also proud of his hair. It had to be weighed before when it was cut. तो उन्होंने मुझ जैसे आदमी में घमंड की जगह रखी नहीं। But the Lord has not kept any place of pride for a man like me. अच्छा, अब्सलोम कोई व्यभिचारी नहीं था। Absalom was not an adulterer. हाँ, और हम देखते हैं उसमें उसने अम्मोन को मरवा दिया। But he got Amnon killed. हाँ, और मार के उसके पहले प्लान था कि मुझे मारना है और फिर कैसे भागना है। पूरा And प्लान। first he had a complete plan. How will I kill Amnon and then run? हाँ, उसने उस दावत में अदावत निकाली और पूरी तरह प्लान था उसका भागने का। वो निकला, के घर गया, क्योंकि यहाँ पर ये वार नहीं कर सकता था। He had a complete plan. He got him killed, then went off to his grandparents' house. We know David will not attack him there. और लगभग 3 साल फिर बर्दाश्त करके बैठा। And 3 more years, he waited. दूसरा सैमुएल 13:38 पढ़िए। Read 2 Samuel 13:38. अतः अबशालोम भागकर गशूर को गया और वहां 3 वर्ष तक रहा। हाँ, 3 साल में उसने एक और प्लान किया, उसकी स्टेज तैयार की पूरी। And for 3 years he made another plan and prepared the entire stage for it. हाँ, और उसका तरकीब बना दी उसने। And what was the plan? अब दाऊद बहुत प्यार करता था उसकी खूबसूरती के कारण भी। अब उसे लगने लगा वो वहां है, बहुत दिन से देखा नहीं, मेरा बेटा है, बच्चा है। और योआब आज उसका सेनापति थे,
उसने एक तरकीब, एक औरत को भेजा, किसी तरह तिगड़मबाजी से उसे वापस बुलवा लिया। Now, David really yearned for Absalom. He's my eldest son now. He's such a handsome guy. Want to bring him back. Joab played a trick to bring back Absalom. माफी बिना पश्चाताप के उसे बुला लिया। And David got him back without repentance. हाँ, मैं सोचता हूँ अब्सलोम का दिमाग कितना तेज था, आप ध्यान दीजिए। Now I just imagine how smart Absalom was. अब्सलोम ने कहा उससे, भाई योआब से यार मुझसे मिल, राजा से बातचीत करा, उसने कहा रास्ता खुलेगा मेरे लिए आगे के लिए। And Absalom called Joab and said, "Look, get me to meet the king. The way will open up for me." हाँ, योआब नहीं गया उसके पास, Joab didn't go. तो अब बुलाए कैसे, योआब से मिले कैसे, उस सेनापति How did he get Joab to meet him? क्योंकि अच्छा नौकरों से कहा कि उसके खेत में आग लगा। And then he told his servants, he said, "Go burn up Joab's fields." वही योआब उसके घर भागा है, तुमने ये क्या किया? And Joab came running to his house. "What have you done?" वो चीज के प्लान, दिमाग देखिए कहाँ था। Just imagine his plan. और फिर वो राजा से मिला, सही सलूत कर लिए, कुछ सिपाही रख लिए, कुछ घुड़सवार रख लिए, और वो इस तरह नीचे नीचे जमीन तैयार करने लगा। Joab got him back to meet the king, reconciled with the king, got a small army, soldiers under him, and he started preparing the ground quietly. बैठे हो, शैतान आपके खिलाफ प्लान बना। As you are sitting, Satan is planning against you. किस तरह इसके किसी पाप में धकेलना, इसे मुश्किल। How to push him into some sin. और मैं जल्दी से आगे देखता हूँ, अब्सलोम बहुत बढ़िया चापलूसी करता था। जितने लोग न्याय के लिए आते थे उनसे कहता था, दो पार्टी आई, उनमें केस चल रहा है। And Absalom used to be very crafty and wise in the way that he was judging people. If two parties come to him for justice, पूरा नहीं कहता था, किसी का पाप नहीं दिखाता था। he did not show anyone's sin. तू भी ठीक है, तू भी ठीक है। You're also right. You're also right. गलत को गलत कहते ही नहीं था, क्योंकि उसका He उद्देश्य, never said wrong as wrong because that was not his motive. उसका उद्देश्य कुछ और था। His objective was different. हाँ, और देखिए ऐसे लोग मंडियों में भी होते हैं, आपके रिश्तेदारों And में। such people are in the assemblies also. हाँ, और देखिए जिनको हम समझ नहीं पाते, बहुत चापलूसी से, क्राफ्टी से, पन से काम करते हैं। We are not able to really understand them. They work with a lot of craftiness. और उनकी सच्चाई नहीं पाई, उन पर दाग ही नहीं दिखाई देता। We can't see the truth. We can't see the spot in their lives. डेविड में दाग दिखाई देते थे, अब्सलोम में नहीं दिखाई देते थे। See the spots in David's life, not in Absalom. हाँ, देखिए मैं जल्दी से आगे जा रहा हूँ। अब क्या हुआ, उसने पूरा राज्य हत्या लिया। मैं कहानी पूरी नहीं जा रहा। And then Absalom took charge of the whole kingdom. और अब जैसे उसने राज्य पे काबू कर लिया, As soon as he took control, अब सुलेमान भागा वहां। and David ran. उसके पास 10 साल का कुल सोलोमन था उस समय, 60 साल का कुल। Pardon, brother? भाई सुलेमान जो था उस समय 10 साल का था, और उसकी डेविड की उम्र 60 साल थी। At the time when David ran, David was 60 years old and his son Solomon was 10 years old. हाँ, वो डर के मारे नहीं भागा था कि मैं डर जाऊं। He did not run away out of fear. वो इसलिए भागा था कि इस्राएल आपस में ना कट मरे। He ran because he didn't want Israel to fight among themselves. वो मैंने शहर में गया, वहां ठहरा, वहां फौजों को इकट्ठा किया और सीधी डायरेक्ट अब्सलोम से लड़ाई लड़ी। He went to a particular city, gathered his forces, and directly attacked Absalom. और जाने लायक नहीं था कि 60 साल का था, लड़ने लायक नहीं था, तो उन्होंने कहा He was 16. He was not ready. He was not able to go to war. His army stopped him. लड़ाई काफी फैल गई, The battle really spread. तो तेजी से भाग रहा था एक जगह। He was running away at one point. बड़े घने पेड़ थे जिनमें झाड़ झंकार था।
Absalom was running very fleeing away, and there was a place where there was a lot of dense trees, बाल कहीं फंसे, and his hair got entangled, सर निकल गया उसके नीचे से, and the horse went from underneath him, झटके के साथ वो ऐसे तने थे, उसमें जाके उसकी गर्दन फंस गई, बाल भी फंस गए। and his neck was caught up in the tree itself, the branch. वो बाल और दिमाग पर बहुत भरोसा रखता था, He used to trust a lot in his brains and his hair, मरा नहीं उस समय, but that didn't kill him. उन्होंने मरने नहीं दिया उसे, The Lord did not let him die. अब भी उसके पास पश्चाताप का समय। There was still time for him to repent. क्रूस पर 2 डाकू लटके हुए थे, प्रभु ने उनके लिए भी स्वर्ग का द्वार खोल रखा था। 2 robbers hanging on the cross, the Lord opened the door of heaven for both of them. हाँ, दोनों के लिए खोला था। For both of them. लूका 15 में वो छोटा लड़का घर से चला गया था, बाप ने अपने घर का दरवाजा उसके लिए In ये ना Luke, Luke 15, the son who had gone away, the father kept the house door open for him. कल तक प्रभु दरवाजा खुला रखता है, The Lord keeps the door open till the last moment, और सब कुछ लौटा कर दे सकता है। and He can give everything back to you. हाँ, और अब्सलोम के लिए भी दरवाजा खुला, मगर वो नहीं पहचाना, उसे नहीं The देखा। door was open for Absalom also, but he did not recognize it. प्रियो, पृथ्वी के हर एक सागर या नदी के पास किनारा है। There is a shore to every sea, every lake, every river in the world. नहीं है नहीं सब कुछ। True or not? True. प्रभु के दंड के और फिर कोई किनारा नहीं होता। But the forgiveness of the Lord is no shore. अगर आपने वो सीमा को पार कर दिया, If you have crossed the boundary line, हाँ, और अब्सलोम ने सीमा पार कर, and Absalom crossed it, उनको भी प्रभु ने 2 साल दिए कि पश्चाताप कर ले। the Lord, pardon brother, the Lord gave, मोन जो उसका भाई था ना, the अब्सलोम Lord gave Amnon 2 years to repent. वो सुबह उठा और दिन की तरह ऐसे दिन होगा, सब बातें ठीक थी, अब कुछ नहीं होगा। उसे नहीं पता था कि आज उसका आखिरी दिन। The day he died, he must have risen up in the same way, thinking this will be like a normal day, but the very day he was killed. ये लोग जो वचन सुन रहे हैं, उनमें से किन के लिए आखिरी वचन है सर, या मेरे लिए? How many who are hearing this word, it is the last message for them. हाँ, मगर एक बात है, प्रभु का वचन जो आप वो काटोगे, जमीन आसमान टल जाएगा, उसका वचन नहीं टलेगा। But the truth is, what you've sown, you will reap. Heaven and earth will pass away, his word will not pass away. हाँ, दाऊद ने अपनी गवाही को दाखिल कर दी। David, his testimony was spotted. हाँ, दाऊद का परिवार उस पर विश्वास नहीं कर सकता। David's own family couldn't trust him. हाँ, उसके परिवार के पास परमेश्वर का दिल नहीं था। His family did not have the heart of God. बाप किया, मेरा परिवार नहीं, उस बात को नहीं भूल सकता। My sin that I have done, my family cannot forgive nor forget. मैं उसी जगह निशाने पे खड़ा मिलूंगा। I will always be found as the target. हाँ, दाऊद अब उससे बाहर नहीं आ सकता था। David couldn't come out of it anymore. मगर एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ, But one thing I will tell you, हाँ, आप विजय के साथ बाहर निकल सकते हैं। you can come out with victory. ताड़ना के लिए भी धन्यवाद दीजिए। Even thank the Lord for chastening. में एक प्रार्थना है जो इस बात को पहचान गया था। पहला इतिहास 4 और 10 पढ़िएगा। There is a prayer that is in 1 Chronicles 4:13 that you read it. 1 Chronicles 4:13. पहला इतिहास 4:10। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। बस रुकना भाई, थोड़ी देर। सचमुच मुझे आशीष दे, सचमुच आशीष। Oh, that you would bless me. सचमुच आशीष दे। Oh, that you would truly bless me.
तेरे विरुद्ध पाप न करूं, that I may not sin against you. क्योंकि पाप के कारण मैं परेशानी में फंसूंगा, पीड़ा में फंसूंगा, Because of sin, I will get into trouble and pain. या तो ताड़ना में फंसूंगा या दंड में फंसूंगा। But I will get into either judgment or chastening. हाँ, याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। हाँ, First Chronicles 4:10. हाँ, अगर आप ये ध्यान रखो, If you keep this in mind, तो भी मैं बोऊंगा, pardon, brother, जो भी मैं बोऊंगा, whatever I sow, हाँ, वो मैं और मेरा परिवार काटेगा, that I and my family will reap. मैं और मेरा परिवार काटेगा, मैं Pardon? और Me and my family will reap. दोनों लड़के लड़कियों में शादी हुई, बहुत अच्छे शादी। One girl and boy got married, good families. हाँ, और बहुत अच्छा खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ, मगर दोनों आंखें नहीं थी। Had a very beautiful child but was blind. तो डॉक्टर ने पूछा उससे, क्या तुम किसी ऐसी बीमारी से, ऐसे पाप से, सेक्सुअल पाप से पहले इन्वॉल्व थी? The doctor asked, were you involved in any sexual sin beforehand? हाँ, उसने कहा थी मैं। Pardon, brother? लड़की ने कहा मैं थी पाप में, The girl said, I was. क्योंकि वो पाप है जी। And he said that this is the consequence of that. उनके बताओ, दाऊद का पाप उसके परिवार में नहीं होगा? Did not David's family suffer the consequences of his sin? क्यों हमें मंडली में, मैं जिन लोगों से सहमत नहीं हूं, मैं कहूँ मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, चाहे तुम कोई। Now in the assembly, if I do not agree with somebody, I say, I'm not in agreement with you, I'll not work with you. मैं समझौते के साथ नहीं काम करूंगा, I will not work with compromise. नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। I will not do it. घमंडी है, ये यूं है, और वो अलग कहते हैं, अलग कहते हैं। मेरी गलती ये हुई कि मैं उन्हें 30-30 साल तक पालता रहा और उनके पाप को छिपाता रहा, इसलिए जो मैंने बोया उसे मैंने काटा। My mistake was that for 30 years, I kept on being with them in fellowship, and I now suffer the consequences of the sin I have done. मैं क्या कहूँ, मेरा पाप था, It was my sin. उसी से मैं उनसे कहना मैं इनके साथ नहीं काम करूँ। I should have said, I cannot work with you. मैं 5 लोगों के साथ बैठूंगा, 50 के साथ भले ही ना बैठूं। I will sit with 5 people rather than 50. पाप के साथ किसी तरह का भी समझौता भयानक बात। No compromise with sin, it is terrible. तो हम बोएंगे वो काटेंगे निश्चित रूप से। What you sow, we will reap. हाँ, आपको और माफ कर सकते हैं, मगर क्यों अब्सलोम के पास लोग चले गए? क्योंकि उन्होंने देखा यार दाऊद तो यानी क्या कर। Why did they go to Absalom? Because they knew David's situation. का परिवार उस पर विश्वास नहीं करता था। His own family did not trust him. हाँ, उसने भजन 91 के बाद अब तक कोई भजन नहीं लिखा था। He did not write any psalm after Psalm 91. उससे वो उसका टैलेंट ले लिया गया, वो रातों में कैसे सोता होगा? That his talent was taken away. How would he sleep at night? तो आप बोगे, वो आप और आपका परिवार और आपके बच्चे काटेंगे। That which you sow, you and your family will reap. हाँ, नहीं भाग के, बाइबल You कह रही can, है। the Bible is saying that you cannot run away. बहुत समझ के कदम रखना। You must step very carefully. प्रभु माफ कर देगा, मगर ये संसार और आपका परिवार माफ नहीं कर सकता। The Lord will forgive, but this world cannot forgive. हमेशा आपका वही पाप आपको दिखाता रहेगा। That same sin will keep on coming back to you. आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। It will not spare you. और प्रियो, जिनके घरों में, जिनके पास शांति का परमेश्वर है, उनके पास भी शांति नहीं रहता। And dear ones, those who have the God of peace, even there is no peace in their home. आप बोया यरूशलेम जो शांति का शहर है, उसमें शांति नहीं है।
And in the city of peace, Jerusalem, there is no peace. ये बहुत सारे विश्वासी परिवारों में शांति नहीं है। Lot of believing families have no peace. हाँ, मैं कह रहा हूँ कि वो नरक नहीं जाएंगे, बिल्कुल 100% है, मगर वो It is 100% they will not go to hell, but they will go through chastening. वहाँ पे एक बड़ी योजना और आपके पास एक जीवन है, इकलौता जीवन है। You have one life, the only life. हाँ, या तो आप उसे गवा देंगे या उसमें कमा कर जाएंगे। You will either ruin it or you will invest it. कई बार फैसले बड़े कड़वे दिखाई देते हैं, Many times decisions seem very painful, हाँ, मगर वो बाद में बड़े आनंददायक। but they are very rewarding in due time. प्रभु मुझे सचमुच आशीष दे। Lord, Jabez said, Lord, that you would truly bless me. पाप की भयानकता को समझो, पाप से खेलो मत। Understand the terrible consequences of sin. Do not play with sin. विश्वासी भाग नहीं सकता, A believer cannot run away. तो वो यहाँ आनंद से जी सकता, फिर नहीं जी पाएगा। Neither can he live here with joy. हाँ प्रियो, संसार का तो न्याय होना, एक बार होना। The world has to be judged once. हाँ, बड़े शांति आनंद के लिए और आशीष के लिए बुलाए गए। You have been called with for great joy and peace. अगर आपके जीवन में कोई पाप, कहीं भी छिपा पाप वो साथ जी रहा है, आप उसे उजड़ पा। If there is any sin living in you, मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभु का वचन मजाक नहीं I है। am not saying this. The word of God is not a joke. जो आप बोएंगे वो काटेंगे। What you sow, you will reap. आइए हम एक भजन के बाद प्रार्थना में जाएंगे। Come after a hymn, we will go in prayer.